Okay, so next question which I have, that is we have inserted the child report with the help of trigger. Okay, so we are giving the automation. Which type of automation? Let's suppose we will create the account, so automatically contact will create opportunity. So it's a automation. Okay. Now in after insert, I'm using trigger.new. In before insert, I'm using trigger.new. So I want to know which type of context variable I can use in after insert. Okay, means can we use trigger.new map in after insert or no? Can we use trigger.new map in after insert or no? So it's the interview question. Can we use trigger.new map in before insert? No. Can we use trigger.new map in after insert? So answer is yes. Yes. Why we can use? Why answer is yes? Because after insert means record will get insert into database, and if record will get insert into database, we will get the record ID. So in trigger.new map, we store ID and new record information. So if we will have ID, we can store it. Okay. So answer is yes, we can use. Okay. Next, can we use trigger.old or old map in after insert? Okay, so these things we have to learn. So what I'm doing, I'm going to make the table, and from table we will understand which context variable we can use in event. Okay, so we have 7 type of event. I'm going to write it. So is anyone can tell me how many types of trigger events in Salesforce, and can you tell me the name of the trigger event? Types of trigger event. Sir, insert, delete, and delete. Okay. Okay. Is before, is after. I'm not asking context variable. I'm asking trigger event. Okay, so insert, delete, and delete. Oh, like after insert. This one after. Yeah. Okay, before insert, after insert, before delete, after and delete. And okay. एक और रह गया है. Hmm. After update or Yeah, before update. after update before. Yeah, come again. After update or before. स्टार्टिंग से बताओ. Before insert, after insert. Hmm. Before update, after update. Mm-hmm. After delete or before delete or after and delete. After and delete. Which one is not available? Before and delete. Yeah, good. Okay, so now I'm going to make one sheet, and in which I'll write complete information.
Okay, so which table I am making you, you have to learn it. Okay, it's important for interview and to be a good, you can say developer. It's important. If you want to be right, good trigger. So this table, this table should be in your mind. Okay. So first, we have some event like trigger event before insert, after insert, then before delete, after, sorry, before update, after update, and before delete, after delete. And we have after undelete. Okay, so these are the trigger event. Okay, we have some trigger context variable like trigger dot new, trigger dot new map, trigger dot old, trigger dot old map. Okay, so these are the context variable. So can we use trigger dot new in before insert? Yes, we can use trigger dot new in before insert. Can we use trigger dot new map in before insert? Not possible. New map means ID with record. ID we will not get. Okay, trigger dot old. If we are inserting the record, inserting means new record we will get. So old record we will not get. So it's not possible. Answer is no. Trigger dot old map, no. So only what we can use in before insert, trigger dot new. We can use only trigger dot new. After insert, so trigger dot new we can use. Yes, we will have the ID because record will insert. We can use trigger dot new map also. Trigger dot old, no, we will not get any old record. No, trigger dot new map. Okay. After update or before update. So trigger dot new, yes, we can use. Trigger dot new map, yes, we can use. Trigger dot old, yes, we can use. Trigger dot old map, we can use. In after trigger, yeah, everyone we can use. So trigger dot old, why we are using? Because we will update database record. Yeah, old record which are in available in database. Okay. Trigger dot new and new map, why we are able to use it? Because in trigger dot new and new map we will get updated information. Okay, new information, yeah, updated information will come in trigger dot new and new map. That's why we use. Okay, next is delete. Before delete or after delete. So first question, can we delete new record? Okay, can we delete new record which is not available in database? Can we delete it? No. No. So so trigger dot new means that record which are not available in database we are holding it. So before delete means it is not possible, means new record will not come. Always we will delete the old record. Trigger dot new and new map we can't use in before delete. Okay, but old we can use. Same for after delete. No, no. Yes, we can use trigger dot old. Then next, yes. Okay, old and old map we can use in trigger dot, sorry, in after delete also. Fine. Next is after undelete. Okay, so we will undelete the record. So can we use trigger dot new in after undelete or not? इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आफ्टर अनडिलीट से पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन ये होता है कि बिफोर इंसर्ट में ट्रिगर डॉट न्यू मैप यूज कर सकते हैं या नहीं. फिर क्वेश्चन ज्यादातर अनडिलीट से ही पूछते हैं. ठीक, पूछते सभी से हैं, सभी इंपॉर्टेंट थे, बट अनडिलीट वाला जरूर पूछा जाता है. सो कैन वी यूज ट्रिगर डॉट न्यू इन आफ्टर अनडिलीट?
न्यू मतलब न्यू रिकॉर्ड, सो पता नहीं। ट्रिगर डॉट ओल्ड वी कैन यूज। ठीक है, तो आंसर क्या है? ट्रिगर डॉट न्यू मैप वी कैन यूज। न्यू एंड न्यू मैप वी कैन यूज। ट्रिगर डॉट ओल्ड, नो वी कांट यूज। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, नो वी कांट यूज। ओके, what is it means why we are able to use trigger dot new and new map in after and delete. After and delete means we are in recycle bin and getting the data from recycle bin, and where it is coming, it's coming into database. Okay, it's our database, so data is coming into database. Okay, so from recycle bin what we are sending? Data ram 111, sam 222, cam 303. ठीक है, वी आर सेंडिंग दिस डेटा फ्रॉम रिसाइकल बिन टू डेटाबेस। तो जब जैसे ही वी विल हिट इनटू डेटाबेस, तो डेटाबेस में ये न्यू रिकॉर्ड की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही? डेटाबेस में न्यू, अगर हम इनको अनडिलीट करेंगे तो डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड की एंट्री हो हो रही है या रही है। नहीं? ठीक है, तो ये डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड आ रही है। अब पहले दो रिकॉर्ड थे, ठीक है, पहले थे ये राम शाम कैम, ठीक है, हमने डिलीट कर दिए रिसाइकल बिन में। अब हम इनको अनडिलीट कर रहे हैं, तो अब ये दोबारा से आ रहे हैं, री एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये न्यू रिकॉर्ड आ रहे हैं डेटाबेस में। अब न्यू रिकॉर्ड को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? ट्रिगर डॉट न्यू एंड न्यू मैप में। ठीक है, जब वो हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे उनमें आईडी भी होगी। दैट्स वाई वी यूज ट्रिगर डॉट न्यू मैप। ठीक है, तो ये रीजन है कि आफ्टर अनडिलीट में हम ओल्ड रिकॉर्ड नहीं यूज करते, कि ओल्ड डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, ये डेटाबेस में जब हिट पर करेंगे। सर, हाँ हाँ, यस मैम। जब रिसाइकल बिन से डेटाबेस में जाएगा तो हाँ उसके हाँ पास एक आईडी तो होगी। हाँ हाँ, तो हमारा जो ट्रिगर डॉट न्यू होता है उसमें तो बिना आईडी, मतलब आईडी इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट मतलब रिकॉर्ड्स मैम बिफोर। उसमें स्टोर तो हम कर सकते हैं, ट्रिगर डॉट न्यू में आईडी भी स्टोर होती है। हाँ। जैसे हम ओके। अकाउंट एसीसी लिखा हमने, हम्म। सेलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट लिमिट 1। हम्म। ठीक है, तो इसमें अब एसीसी में जो हम एसीसी में सारी इंफॉर्मेशन आएगी ना अकाउंट की, नेम टाइप राइट। रेटिंग इंडस्ट्री आईडी भी। ठीक है, बट बिफोर इंसर्ट में क्या होता है कि आईडी क्रिएट ही नहीं हुई। बिफोर इंसर्ट तो पहले एग्जीक्यूट हुआ, आईडी क्रिएट ही नहीं हुई, तो उसमें आईडी हम्म। आती नहीं है। ठीक है, अगर आईडी ओके, क्रिएट हो चुकी है, आईडी जनरेट हो चुकी तो है, तो आएगी। लिस्ट में आईडी भी आएगी, ट्रिगर डॉट न्यू में आईडी भी आ रही है। ओके सर। ठीक है, ओके। हमने अभी जो सिनेरियो किए थे कॉन्टैक्ट वाले, उसमें हम मैं ट्रिगर डॉट न्यू यूज कर रहा हूँ। इसमें रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, आईडी भी जनरेट हुई। वो रिकॉर्ड जो आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड विद आईडी आ रहा है इसमें। राइट सर। ठीक है, हाँ, डेटाबेस में एज ए न्यू रिकॉर्ड एंट्री होती है, इसलिए हम ट्रिगर डॉट न्यू और न्यू मैप को यूज करते हैं, ओल्ड को हम नहीं यूज करते। इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल याद कर लेना। ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। ओके, सो दिस थिंग वी विल लर्न। कंप्लीट ट्रिगर यही है। Okay, so till now I have taught you what is before insert, after insert, how we will use trigger dot new. Okay, these thing we will learn. We have studied. Now I'll teach you other thing also. Okay, when we will use trigger dot new map old this thing. So I'm going to take another scenario. Okay, now I am taking another scenario in which we will complete before update.
ठीक है, बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट। आफ्टर, ठीक है, बिफोर अपडेट का मतलब हुआ कि डेटा अपडेट जब हम कर रहे हैं तो पहले सेव नहीं होएगा, पहले बिफोर अपडेट का लॉजिक एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है, देन डेटा सेव होएगा। आफ्टर अपडेट का मतलब हम जो अपडेट, ठीक है, आफ्टर अपडेट का मतलब रिकॉर्ड अपडेट किया हमने, डेटाबेस में सेव हुआ, देन जो कोड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू बिफोर अपडेट। In this scenario, we will complete before update and trigger dot new map. Okay. So I'm gonna write the scenario. ठीक है. So if account name we are modifying, if account name we are modifying, so that time we have to display error message. That time we have to display error message. Okay. Account name we can't change. ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन लिखनी है कि अकाउंट नेम एक बार जो लिख दिया, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता फिर। आई डोंट वांट टू गिव द परमिशन। सो इफ यू विल ट्राई टू मॉडिफाइंग इट, वी विल डिस्प्ले वन एरर मैसेज। ओके, अकाउंट नेम यू कांट चेंज या वट एवर एरर मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले। तो हमें क्या करना है, पहले अभी तक जो सिनेरियो लिए थे उनमें हम ऑटोमेशन प्रोवाइड करा रहे थे। नाउ वी हैव टू क्रिएट द वैलिडेशन रूल विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर। ठीक है, वैलिडेशन रूल का एक एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। Okay, if account name we are modifying, so that time we have display error message, account name you can't change. ठीक है, so first we have to think on which object we are writing the trigger, on which TML event it will execute, and which type of trigger we have to write. ठीक है, किस ऑब्जेक्ट पे है, कौन सा इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और किस टाइप का ट्रिगर है, टेल मी। ऑब्जेक्ट अकाउंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अकाउंट है, इवेंट अपडेट है, इवेंट अपडेटिंग, ओके, एंड कौन से टाइप का ट्रिगर है। बिफोर अकॉर्डिंग टू मुक्ता बिफोर, ठीक है, बिफोर क्यों है ये, आफ्टर क्यों नहीं है ये। सर हमने अपडेट, लाइक व्हेन वी आर अपडेटिंग, तो हम्म, वो जो अपडेटेड नेम है वो डेटाबेस में नहीं पहुंचा, उसके पहले ही हमको एरर शो करा देनी है। दैट्स ओके, ऑल। ओके। तो सबसे हम, ठीक है, हमें ट्रिगर पहचानने के लिए कि बिफोर या आफ्टर क्या लॉजिक देखना है हमें, कि हम डेटा को पॉपुलेट कर रहे हैं या वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं। अगर पॉपुलेट भी कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे पॉपुलेट कर रहे हैं, तो आंख बंद करके बिफोर लगा दो। अगर वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट के फील्ड पे, आंख बंद करके बिफोर लगा दो। इसमें क्या क्लू मिला है हमें, कि हम वैलिडेशन। वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं और सेम ऑब्जेक्ट पे, अकाउंट नेम फील्ड पे, अकाउंट पर ट्रिगर, अकाउंट ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट, ट्रिगर कौन से ऑब्जेक्ट पे, अकाउंट पे, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट की फील्ड पे वैलिडेशन रूल लगा रहे, तो हमें क्या लिखना है हमेशा, बिफोर। सेम ऑब्जेक्ट पे डेटा पॉपुलेट करो या कोई भी वो लगाओ वैलिडेशन, ट्राई टू यूज बिफोर ट्रिगर। ठीक है, ये हमें लॉजिक, ये हम मतलब हमने पॉइंट है या की हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उन की हेल्प से हमने कि बिफोर में आना चाहिए, ठीक है, बिफोर में आएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू राइट द लॉजिक। So here I'm going to add before update. Okay. So if you want to add all trigger events, you can add it. So I've added two. Okay. Now I'm writing condition. Else if trigger dot is before and is update. Sorry, trigger dot is update. So if it is a before and update, that time
वी हैव टू एग्जीक्यूट द लॉजिक। ठीक है, तो सेम ट्रिगर में हम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करेक्ट है। गुड अप्रोच क्या है कि हेल्पर क्लास को कॉल कराओ। ओके, आई एम गोइंग टू दी हेल्पर क्लास। ओके, सो if you want to create do many things in one class, you can do it. If you want to create new class, you can create new class. It's up to you कि वो लॉजिक को मैं हाई लिखूं हेल्पर क्लास का या न्यू क्लास क्रिएट कर लूं। इसी क्लास में लॉजिक चाहते हो या न्यू क्लास क्रिएट करूं? न्यू क्लास में कॉल करते हैं सर। गुड। ठीक, क्योंकि इसी क्लास में लॉजिक लिखते रहेंगे तो ये लगेगा अरे इतना लंबा कोड है, हम कैसे करेंगे। आई एम गोइंग टू राइट क्रिएट सर। न्यू क्लास। सो सेकंड ट्रिगर ऑन अकाउंट helper 2. So it's the helper 2. Inside it, I'm going to create one method. So public static void. When we will use it? Before update. So any name you can write, it's up to you. I am writing before update method. You can write anything. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि सॉरी स्टैटिक अकाउंट नेम चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, वी हैव अपडेटेड दी अकाउंट नेम और नो। ठीक है, अब अकाउंट नेम को अपडेट करने के लिए हम मतलब कैसे पहचानेंगे कि अकाउंट नेम अपडेट हुआ है या नहीं? कैसे पहचानोगे कि अकाउंट का नेम चेंज कर रहे हैं या नहीं? ओल्ड अकाउंट नेम इज नॉट इक्वल टू, मतलब अगर वो न्यू अकाउंट नेम के इक्वल टू नहीं हुआ तो ठीक है, पहले अकाउंट नेम क्या था? कोरांसु। ठीक है, कोई आया, किसी ने अकाउंट नेम चेंज किया। ठीक है, नाउ अकाउंट नेम क्या कर दिया? मार्क। ठीक है, तो ये न्यू अकाउंट रिकॉर्ड है। ये क्या है? ओल्ड अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, ओल्ड अकाउंट रिकॉर्ड क्या था? गोरांसु, किसी कोई आया है, कोई चेंज करा है, मार्क लिखा है न्यू अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं है, अगर दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं है ओल्ड और न्यू की, तो उस टाइम एरर मैसेज डिस्प्ले करा दो। अगर जो जब हम अपडेट कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, नाम नहीं अपडेट कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फोन नंबर अपडेट किया, उस टाइम थोड़ी एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है। फोन नंबर चेंज कर सकते हो, ये परमिशन देनी है हमें, बस कोरांसु नहीं अपडेट कर सके। ठीक है, तो पुराना जो रिकॉर्ड का नेम है और न्यू रिकॉर्ड जो न्यू अकाउंट का न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, उन दोनों के नेम अगर सिमिलर नहीं है, उस टाइम हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब देखो न्यू इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? न्यू इन्फॉर्मेशन वेयर वी विल गेट? न्यू इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? ट्रिगर डॉट न्यू में। ठीक है, और जो ओल्ड अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ आती है? ट्रिगर डॉट ट्रिगर ओल्ड डॉट है, ओल्ड में। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पे। ठीक है, तो ये सिनेरियो आप दोनों यूज उससे कर सकते हो। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड चाहो ओल्ड यूज कर लो, ओल्ड मैप चाहो ओल्ड मैप यूज कर लो। ठीक है, इफ यू विल यूज ट्रिगर डॉट ओल्ड, सो यू हैव टू इटरेट द मीन्स यू हैव टू इटरेट यू हैव टू राइट टू लूप। ट्रिगर डॉट ओल्ड भी इटरेट करानी होगी, ट्रिगर डॉट न्यू भी। ठीक है, दो लूप। इफ यू विल यूज ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, तो आपको एक ही क्या यूज करना होगा? एक ही लूप इटरेट करानी होगी। सो इट्स अप टू यू एंड यू कैन यूज एनी। ठीक है, तो न्यू रिकॉर्ड ट्रिगर डॉट न्यू में मिल जाएगा, न्यू मैप में मिल जाएगा। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड तो हमें मिल जाएगा। तो मैं न्यू रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ? न्यू मैप में आपको जब स्टोर करना है जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो। ठीक है, सिंपल लॉजिक ट्राई टू स्टोर इट इन ट्रिगर डॉट न्यू। So what I'm doing, I'm going here and I'm storing new information. So list of account ACC list in which I'll get new information. ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब हमें चाहिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ओल्ड भी यूज कर सकते हो, ओल्ड यूज करिए तो दो लूप लगेंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों से ही करके देख लेंगे एक करके।
पहले ओल्ड से ही करके देख लेते हैं, चलो। लिस्ट ऑफ अकाउंट, ओल्ड रिकॉर्ड। ओके, आई एम गोइंग टू सेव इट, आई एम गोइंग टू सेव इट। So now what I'm doing, going to the trigger, and we have to call this class in trigger. So here we have to call it. So go to the second trigger, write the class name, call it in trigger dot method name. Go to the main class, call the method. Then we have to pass the parameter. ठीक है, मान दो पैरामीटर पास करें हमें, एक चाहिए न्यू रिकॉर्ड, एक चाहिए ओल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, सो हमें न्यू रिकॉर्ड पास करना है पहले। तो गो टू द ट्रिगर, हेयर राइट ट्रिगर डॉट न्यू, देन वी नीड ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड, देन सेव इट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लास सेव करेंगे, देन वी विल सेव टू द ट्रिगर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी को भी, मतलब कि आई एम गोइंग टू ट्रेड द रिकॉर्ड। ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्रेड द रिकॉर्ड। सो फॉर अकाउंट ACC, न्यू ACC लिस्ट, कि मैंने इटरेट किया रिकॉर्ड। ठीक है, हेयर आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट डीबग, आई एम गोइंग टू चेक द कोड, अकाउंट नेम, न्यू ACC नेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, जो हम अपडेट कर रहे हैं अकाउंट नेम वो आना चाहिए। ठीक है, इनसाइड द फॉर लूप आई एम राइटिंग अनदर लूप फॉर अकाउंट A ओल्ड रिकॉर्ड। सिस्टम डॉट डीबग, ओके, ओल्ड ACC नेम, A डॉट नेम। चेक करते हैं कि लॉग्स में क्या डेटा आ रहा है। ओके, गोइंग टू दी, first I'm going to create one, sorry, I'm going to update it, record 5, not record 5, another record we will update. I am writing Sankey Agarwal. Clicking on save, now going to check the debug. So check the logs, ये तो हो रहा है। बिफोर अपडेट, ठीक है, ये ओरा की क्या एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ, ठीक है, दूसरे उसमें क्या आ रहा है कि न्यू अकाउंट रिकॉर्ड क्या है, सैंकी AGGA, ए ऐड किया था, ओल्ड अकाउंट रिकॉर्ड सैंकी अग्रवाल। ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमें दोनों डेटा चाहिए था, दोनों दोनों डेटा आ गया। तो कंडीशन लगा दो, इफ, ठीक है, ACC डॉट, सॉरी पुराना नेम इसमें अवेलेबल है, A डॉट नेम डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, A डॉट नेम मतलब कि पुराना नेम A डॉट नेम डज नॉट इक्वल टू न्यू नेम ACC डॉट नेम। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है।
So how can we display the error message? We have to write system dot how we display error message in trigger. हमें डिस्प्ले कराना है एरर मैसेज अगर दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे अपडेट करूं अपडेटेड इंफॉर्मेशन एड एरर। ठीक है, तो डेटा पहले डेटाबेस में बिफोर अपडेट या वी हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज लाइक दैट ए डॉट एड एरर एंड नेम वी कांट चेंज। I think we will get error message. Error message means I think there is some error in the class. It's not a good approach. Execution of before update goes by as object row does not allow. Line number 8 कौन सा before update method? ठीक है, वी आर गेटिंग एरर मैसेज कि कुछ कोड में एरर है। एरर कोड में क्यों है? क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू एडिंग द एरर मैसेज ऑन ओल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू ऐड द एरर मैसेज ऑन ओल्ड रिकॉर्ड। तो हमें एरर मैसेज जो है वो न्यू वाले पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइंग इन्फॉर्मेशन न्यू पे आ रही है, वो जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं उस टाइम एरर मैसेज डिस्प्ले करें। तो हमें क्या करना है? लूप को हमें चेंज करना है। हमने थोड़ा कोड गलत कर दिया है। फर्स्ट वी हैव टू इटरेट ओल्ड रिकॉर्ड लूप। ठीक है, क्योंकि हमें जब हम मॉडिफाई करेंगे उस टाइम हमें रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, एरर मैसेज उस टाइम डिस्प्ले कराना है। फॉर अकाउंट एसीसी न्यू एसीसी लिस्ट। एंड वी हैव राइट द कंडीशन if acc dot name does not equal to a dot name। so a dot add error message name we can't change। ठीक है, अब कोड परफेक्ट है। now I'm going to execute this code। acc ठीक है, name we can't change, name we cannot change, so that error message is coming। if I'll remove and now I'm trying to save name is same। ठीक है, वही नेम है पुराना वाला, तो वी आर एबल टू क्रिएट द रिकॉर्ड। ठीक है, ये कोड समझ में आया? क्यों हमने लूप मतलब पहले ओल्ड रिकॉर्ड को इटरेट किया, क्यों बाद में हमने न्यू रिकॉर्ड को इटरेट किया? क्योंकि ओल्ड रिकॉर्ड पे एरर मैसेज डिस्प्ले कराने से क्या होएगा, जो डेटाबेस में सेव है उस वाले रिकॉर्ड पे मतलब मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन जब हम मॉडिफाई करेंगे उस टाइम डिस्प्ले कराना था। लेकिन हम किस पे डिस्प्ले करा रहे थे? जो सेव है, तो उस टाइम वो एक्सेप्शन था, वो मतलब एरर था, कोड एरर ही था। So whenever you will use trigger dot old and new, and you have to check the old information and new information. So first iterate old loop, then iterate new loop.
Okay, so it's a way. If you will get any scenario, means you are updating contact phone number, and contact phone number is not similar to the old phone number or display error message, you can do it. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड को चेंज नहीं करने देना है आपको, उस तरह का सिनेरियो मिलेगा, उस टाइम आप ऐसे लॉजिक लिखोगे। किसी को कोई डाउट है इस सिनेरियो में? Sir, why we have write loop inside the loop? ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम? हमें क्या चाहिए? ओल्ड डेटा चाहिए प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई ओल्ड डेटा विल गिव ओल्ड रिकॉर्ड, न्यू डेटा विल गिव न्यू एसएससी लिस्ट, दैट्स वाई। जब तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि ओल्ड डेटा न्यू डेटा के बराबर है या नहीं, जो न्यू डेटा है वो ओल्ड डेटा के बराबर है या नहीं। टू कंपेयर द वैल्यू वी आर इटरेटिंग इट। एक लूप हमें न्यू वैल्यू दे देगी, एक लूप हमें ओल्ड वैल्यू देगी। ठीक है, एवरीवन इज ओके विद दिस सिनेरियो? Yes, sir.